and providing different HR solutions to different companies, and basically a corporate trainer as well. Currently, I'm working as a head of an institution and where I am looking after management and HR both. So this is my short introduction. I would like you all to please participate in this session, and I would suggest that please keep your cameras open, because when I talk without the camera open तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं दीवार के साथ बातें कर रही हूँ, तो दीवार के साथ बातें करके मुझे मजा नहीं आता। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को देख सकें, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुझे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं जिसमें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। तो बेटर कि हम अपनी कैमरास को ओपन कर लें, वरना मैं और मंसूर साहब जो ऐसे बातें करेंगे और फिर हम चले जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब भी सेशंस लें, कीप योर कैमरास ओपन, ताकि आप एक दूसरे को देख सकें, आपको पता हो कहीं दोबारा आप नजर आए तो पता चले कि हम कोर्स में थे, हमने कोई कोर्स इकट्ठा साथ किया था। इस तरह तो नामों से ही हम जाने पहचाने जाएंगे। तो आई गिव यू अ चांस टू ओपन योर कैमरास, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, because I think you all had an introduction session yesterday, but I wasn't here. So if I can have a short introduction before we start the session. So मेरी screen पे जो मेरे साथ हैं वो आयशा रियाज हैं. If you can just give me a short introduction of yourself. You can unmute your mic and then you can give a short introduction. Assalamu alaikum. Ma'am, मैं आयशा रियाज हूँ. I'm working from last 4 years in HR as a HR manager in Woodward, Pakistan. I have done master in statistics plus I have done master in HRM. So क्या हम आपको देख सकते हैं? Miss, currently मैं ऐसी जगह पे हूँ कि I can't. चलें, जब आप next maybe next session yes, sometime inshallah, I would like to see you as well. Second मेरे साथ 3P है. अब अपना नाम भी बताएं 3P जो हैं, और फिर ये भी बताइएगा कि आप हैं कौन जी. अस्सलाम वालेकुम, this is सैयद नूरुल तरहा. तो आपने अपना नाम 3P क्यों रखा हुआ है इसके ऊपर? एक्चुअली मैम लैपटॉप का नाम इसी नाम से सेव हुआ था. तो जब आप जूम पे आते हैं तो आप अपना नाम तो रखिए. represents third party. अच्छा ठीक है. आपका नाम क्या है? I cannot hear you. Hold on a second. Yes. अच्छा, basically it represents. Yes. Yes. So just give me a short introduction about yourself. Actually, I have done my master's in statistics, and from last year, I'm in HR and in Imtiaz supermarket, and I'm looking after all the third-party employees of Imtiaz, like all Pakistan. Okay, so where are you? You are from Islamabad or Karachi? I'm from Karachi. You're from Karachi. Okay, thank you. And I didn't get your name. This is Sayyid Nurul Talha. Sayyid Nurul Talha. 3P से याद रखूंगी तुम्हें. Yeah, sure. ठीक है. जो सेकंड मेरे साथ हैं वो है फैसल कुरैशी. उनको तो वो तो नजर आ रहे हैं. चलें, ये अब we can have an introduction. जी अस्सलाम वालेकुम. My name is Faisal Qureshi, and it's really evident from the screen that I am on my way home. Yes. From work. Yes. Thanks to my good colleagues who are driving at the moment, and I'm just sitting on the front seat. But anyways, I'm working as manager HR in an IT firm. It's been 3.5 years. I have met you in the HR meetups as well. Salam dua hui thi aapse. And जी, so अभी IT firm में मैं काम कर रहा हूँ, and it's I'm wanted to just know the basics and fundamentals of HR by doing the certification. Yeah, that's great. So आप इस्लामाबाद से ही हैं? मैं इस्लामाबाद से हूँ, बिल्कुल. Okay, thank you. Next मेरे साथ हैं वकारुद्दीन. वो भी हमें नजर आ रहे. चलिए वकार, अब अपना भी इंट्रोडक्शन दे दें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं कराची से हूँ और that I have done my bachelor's in statistics and I've been working in इम्तियाज since 2021. मतलब मुझे 2 साल हो चुके हैं इम्तियाज हेड ऑफिस में as an HR. HR के डिफरेंट फंक्शंस में मैंने इम्तियाज में काम किया. लाइक जब मेरी हायरिंग हुई तो मैं टैलेंट एक्सटिगेशन के डिपार्टमेंट में था. फिर टीए से मेरी मूवमेंट ओडी में हुई, एंड देन राइट नाउ दैट आई एम वर्किंग एज एन ऑफिसर HRMS, जिसमें मैं कंप्लीट सिस्टम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर
फ्रॉम हियर सेंट्रलाइज हेड ऑफिस में और ओवल पाकिस्तान चीज़ों को यहाँ से मॉनिटर कर रहा होता हूँ। तो अब HRMS आपने खुद डेवलप किया या डेवलप्ड लिया आपने? एक्चुअली ये डेवलप मुझे मिला, बट इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स थी सिस्टम्स के अंदर, जो मैंने अपने कंसर्न मैनेजर के साथ मिलके इसमें अमेंडमेंट्स करवाई। कुछ पॉलिसीज अटेंडेंस से रिलेटेड और लीव मैनेजमेंट से रिलेटेड वो इसमें और ऐड करवाया। तो ठीक है, अभी वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल, तो ओके, उसके भी साथ साथ मैं ठीक। मैसेज कर रहा हूँ। सो आप भी कराची से हैं और आप दोनों मेरा ख्याल है इम्तियाज में होते हैं, 3P और आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हैं यासिर वहाब। सो यासिर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम। यासर वहाब है फ्रॉम MTI मर्दान एज असिस्टेंट मैनेजर HR। ठीक है, तो इस आपका कैमरा नहीं चलता? मैडम मेरा आज जो है वाईफाई थोड़ा स्लो है, अच्छा, इसलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम ठीक है, चलें, कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे आप कैसे। उसके बाद है इंशाल्लाह। हमारे पास राहत बानो। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। I'm a member, I'm Rahat Bano, and I'm associated with the field of education for the last more than 17 years. Currently, I'm working as a principal in a private system school here in Mardan. कौन And से सिस्टम है राहत आजकल आप? the city school. अच्छा, सिटी स्कूल में, ठीक है। सो I met before, so I think we have worked together, Rahat. So thank you so much for joining our course. thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Thank you so much. Okay, thank you. And अभी हमारे साथ आगे हैं दानियाल नजर भी आ रहे हैं। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Daniel. I am from Karachi. I completed my bachelor's from Ulma University. Currently, I work as HR assistant in HRBP outsourcing. अच्छा, ठीक है, आप HR ऑफिसर के तरह कब से कर रहे हैं काम? Last 9 months. From लास्ट 9 मंथ से। गुड। फिर हमारे पास हैं जी रियाज गिल होंगे। ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो मेरे ख्याल है टिल्टी से हैं। फिर है हमारे साथ मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम, इट्स जीनत अलैन। ओके, तो ये आपका ये क्यों नाम है? ये मेरा भाई का नाम है। अच्छा, ठीक है, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। क्या टॉपिक चल रहा है? अच्छा, बस आप अपना मुझे इंट्रोडक्शन दे दें फिर हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज जीनत अलैन ज़हूर। आई एम करंटली वर्किंग एज एन ऑफिसर एट इम्तियाज। अच्छा, ठीक है, इम्तियाज सुपरमार्केट, एंड आई डिड माय MBA फ्रॉम तो आप भी कराची से हैं? जी, कराची से। ठीक है, थैंक यू जीनत। अब रह गए हमारे साथ इल्ताफ अहमद नजर भी आ रहे हैं, तो इल्ताफ साहब आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। म्यूट है आप, माइक खोल लें। Can you listen me now? जी जी जी। Okay, ma'am. This is Altaf Ahmed. I belong to Charsadda and working in Mardan. I ओके। have done my master's in computer science, then MBA, and then I done MS general management from ComSets. Recently, I have completed LLB. अच्छा, तो Currently, इतना आपने क्यों पढ़ा? जी? इतना क्यों पढ़ा आपने? I am fond of learning. अच्छा, ठीक है, इतना ज्यादा आपने पढ़ लिया है। जी मैम। For the last 7 years, I am working with Hill Department. My current assignment is I am associated with medical teaching institution as HR manager. Okay. The medical teaching institution has some constituent institutions, 4 or 6. That is MMC Teaching Hospital, Bacha Khan Medical College, College of Medical Technologies, Children Hospitals, and we have Nursing College as well. ठीक है। So I am looking the overall HR management of Okay. the whole So institution. अभी before we start आज का हमारा टॉपिक जो है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ HR पे है। बिफोर वी मूव ऑन, मुझे आप लोगों से कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द सेशन? आज जो सेशन होगा आप उसमें क्या सीखना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है हम क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुडेज सेशन? इफ यू वांट टू शेयर verbally, you can share, you can unmute yourself and you can share your expectation, and if you don't want to speak you can write it down in the chat box. So if somebody wants to share, please
go ahead. कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी की हमसे? मैम एक चीज तो है यहाँ पर कि मैं खुद अभी एचआर की फील्ड में जस्ट 2 साल हुए हैं मुझे यहाँ आए। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज पहले से ही बनी हुई मुझे मिली, जिसपे मैंने ऑफ कोर्स जो भी हमारे कलीग्स थे और डिपार्टमेंट्स के लोग उनको उस पर एग्जीक्यूशन करवाना, ये मेरा रोल रहा। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुद से कुछ पॉलिसी बनाई हो, मतलब ऐसा मौका या तो मिला नहीं या मुझे खुद भी उस चीज़ में इतना एक एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कि मैं उसे डेवलप कर सकूँ या उसे बना सकूँ। तो जो टॉपिक आज का था या जो आज का टॉपिक है वो मुझे इस पे बहुत हेल्प करेगा फॉर माय करंट पोजीशन एंड फॉर द फ्यूचर एज वेल। जी, ये था मेरी तरफ से। ठीक है। एनीबडी एल्स हैव एन एक्सपेक्टेशन? और किसी की कोई एक्सपेक्टेशन, ताकि जब मैं स्टार्ट करूं सेशन तो मैं आपके वो क्वेश्चंस को माइंड में रख के शुरू करूं। तो एनीबडी, इफ एनीबडी एल्स हैव सम एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेशन या कोई चीज आप सीखना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो डू शेयर विद मी। अच्छा, ठीक है, चलें हमारे पास और कोई, इफ यू वांट टू ऐड, अगर आपको याद आता है लेटर ऑन तो आप अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। Excuse me, ma'am, if I want to add something. Sure. As you know, we are working with the government department, so we have some sort of limitations like rules regulations of the HR. If we want to make some rules regulations, we see the government rules. So we all together work in the ambit of those rules regulations. We cannot go out from those things. Like for example, if we want to create a vacancy, so we will first we will look like for example we will look that which BPS it may be. Like for example, it may be in BPS 16 or 17. Then there are certain rules associated with the BPS. When we create the position, it means that we have to look into the rules regulation of the government. So we are not able to get out of that. I'm here to learn that what the other organizations do. Like for example, if they don't have such limitations, what they are doing. So if I get out from the government, then what I will do over there. I just want to experience it with this course. ठीक है, चले अभी I got the basic information from expectation from all of you. Now I'm going to share my screen so that we can share the I can share the presentation with you, and then we'll start it. So now can you see my screen? I think yes, you can see. Yeah, it is visible right now. Okay. Go on slideshow. Okay, so let's start with HR policy development and structure. So when we talk about HR policies and structures, हमारे दिमाग में आता है कि there would be some specific policy जिसके through हमने चलना है, and there are some structures and procedures through which we have to work. एक ये organogram है जिसके through हम इसको discuss करेंगे. सबसे पहले जो एक बेसिक हमने बनाया हुआ है, डायरेक्टर एचआर है। एचआर पहले हमारे पास एक चीज आ गई, और उसके साथ हमारे पास नीचे है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर स्ट्रैटेजी है। एक ऑपरेशंस होते हैं, इसका काम होता है एचआर का, और एक स्ट्रैटेजी का होता है। ऑपरेशनल काम जैसे हम फील्ड में जो काम कर रहे होते हैं वो ऑपरेशंस होते हैं, और स्ट्रैटेजी जो होती है जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं वो स्ट्रैटेजी होती है। अब इसके अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस है उसके पास क्या रोल्स हैं, ये क्या टीम है। उसके पास एचआर स्कूल टीम्स है, एचआर सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स है, इंगेजमेंट है, रिक्रूटमेंट सर्विसेज है, और स्ट्रैटेजी में एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस है, पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, रिवॉर्ड है, और इसके अलावा पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पार्ट ऑफ एचआर है, इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पार्ट ऑफ एचआर है, पेंशंस हैं, पेंशंस कहते हैं या कंपनसेशंस कहते हैं इसको, देन चाइल्ड केयर सर्विसेज एंड सीएसआर।
ये वो चीजें हैं जो बेसिक्स हैं बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो पार्ट ऑफ एचआर हैं, बट ये वो बेसिक्स चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एचआर काम करता है टू स्टार्ट विद। HR policies क्या है? Human resource policies are systems of codified decisions established by an organization to support administrative, personal functions, performance management, employee relations, and resource planning. इसमें कितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो भी पॉलिसीज होती हैं, जैसे अभी बात हुई, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर की अपनी पॉलिसीज हैं। सो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज हैं। वो पॉलिसीज किन क्राइटेरियाज में फॉल करती हैं? जो सपोर्ट किसको करती है? एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करती हैं। इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एंड रिसोर्स प्लानिंग के जो रिसोर्स आपके पास ह्यूमन रिसोर्स, उसके लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है। पर्पस क्या है? हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो विदाउट पर्पस हम कोई काम नहीं करते। तो व्हाट इज द पर्पस? HR policies allows an organization to be clear with employees on किस चीज के ऊपर आपने बनाना है? The nature of the organization, what they should expect from the company, and what the company expects of them. ये क्या किसके लिए है? कि आप ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। इसको हम कहते हैं टेकिंग द मिशन एंड विजन ऑन बोर्ड, और अलाइनिंग द मिशन और विजन ऑफ द कंपनी। जब तक आप मिशन और विजन ऑफ द कंपनी से अलाइन नहीं होंगे या उसको एग्री नहीं करेंगे, उसमें बिलीव नहीं करेंगे, it would be difficult for you to go on with that organization. So this is the purpose क्यों हम बनाते हैं policies. How policies and procedures work at your company or any company. What is acceptable and unacceptable behavior, ये reason है. और the consequences of unacceptable behavior. कोई unacceptable behavior है तो उसका reason क्या बनेगा, फिर उसके consequences क्या होंगे. कोई ऐसी चीज है जो आउट ऑफ पॉलिसी हट के आपने कोई चीज की है तो देयर माइट बी सम रीजन, तो उसके फिर रीजन के साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर लाइक कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कोई इशू है तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो पॉलिसी क्या होती है कि उसके अंदर वो चीजें मेंशन की होती है। इफ दिस हैपन, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच बिहेवियर्स। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने अपनी पॉलिसी इश्यूज अपनी कंपनी के लिए आइडेंटिफाई करने हैं, किन किन चीजों को आपने कंसिडर करना है। करंट लॉज, आपको लेबर लॉ, ह्यूमन राइट्स के लॉ, डिफरेंट लॉज की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्स। आप किसी मशीन के साथ डील नहीं कर रहे, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्स। तो उनके ऊपर ऑफ कोर्स कुछ लॉज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो एज एन HR पर्सन आपको उन लॉज की इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। फंडर्स रिक्वायरमेंट्स, फंडर्स रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप बना रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर गवर्नमेंट की है तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दे वुड हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, सो वो भी आपको माइंड में रखनी है। एनी कलेक्टिव एग्रीमेंट्स दैट अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा एग्रीमेंट आप करें जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के ऊपर या उसके विजन के ऊपर इफेक्ट हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। इश्यूज दैट एड्रेस इंपॉर्टेंट कंसर्न्स एंड सपोर्ट व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स। और ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, जिनको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है टू रिप्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन समवेयर एनीवेयर इन दी society or the community. Each policy should include all the elements needed for easy revision and effective implementation. Now, I have a question for you all. What do you think? Should the policy be changed every year, or the policy should change after a few years, or it should never change? So I want you to please contribute on this. What is your take on the revision of the policies and to have a better what that affect their effect to see the effectiveness of its implementation? So anybody who wants to contribute, the question is that do you agree with this or not? Agreed, ma'am. I would like to comment on this, that we have to constantly evolve and change. So
That's why you have to update your policies at all times. The frequency can be decided according to the company's vision and mission, and that will really help the company in the long run. Good. Anyone else wants to contribute? So, what I believe that हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे. पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जो हरफे आखिर हो. पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ऑलवेज इट इज अ लाइव डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी रिवाइज्ड एनी टाइम. इसकी कोई रीसेंट एग्जांपल दे सकता है मुझे कि जहां सबने पॉलिसीज चेंज की हो? Those who are working in HR, they know this. जी, मुझे अपने जॉब में ना ये एक्सपीरियंस हुआ कि आई वाज इन वन ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो ICI पाकिस्तान के नाम से मशहूर है. तो वहाँ काफी अरसे तक वो जब एक्विजिशन उनकी हुई पाकिस्तानी ग्रुप ने की, उसके बाद फिर एक और मर्जर हुआ, तो वहाँ पे हमें पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा. तो वहाँ पे हमें ऐसी ऐसी पॉलिसीज को भी देखने का इत्तेफाक हुआ जो कि 2003 के बाद रिव्यू ही नहीं हुई थी. तो 2003 के बाद? हाँ जी, रिव्यू ही नहीं हुई थी ना. तो हमने उनको जाके रिव्यू किया एज पर द जो अमेंडमेंट थी चीजों के अंदर. तो उनको हमने 2017 में और 18 में जाके रिव्यू किया, और हमने वो अभी भी उसकी पोर्टल पे मौजूद थी पॉलिसीज, और उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट रिव्यू कब हुआ, सेकंड रिव्यू कब हुआ था. तो लास्ट रिव्यूज जो बता रहा हूँ आपको, कितने पुराने रिव्यूज थे, और उसको किसी ने किया ही नहीं. सो थैंक यू मंसूर साहब. मुझे सिर्फ कोई एग्जांपल दे सकता है रीसेंट टाइम्स में जहां पॉलिसीज चेंज हुई हो? मैम इफ आई कैन कमेंट. जी जी श्योर. मैम हमारे साथ एक मसला था कि ये नर्सेज और डॉक्टर्स जो हैं ये तो एक ऐसा रिसोर्स है कि वो स्केर्स है ना अभी. तो हमारे पास जो पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने हमें दी थी, या जो रिफॉर्म्स थे हमारे ना, रिफॉर्म्स में इनका ये था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखना है. तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ ये हो गया कि लोग टिकते नहीं थे. मतलब वो क्या कहते उसको, टर्नओवर ज्यादा था. तो अभी फिर मैंने मतलब यह कि उसमें एक पॉलिसी बोर्ड से इम्प्लीमेंट करवाई कि हमने ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट रख लिया परफॉर्मेंस बेस्ड. तो अभी देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सही है. सो रीसेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा पॉलिसी चेंजेस आए थे दैट वाज ड्यूरिंग कोविड. जब कोविड ने हिट किया था तो जनरली लोगों के पास सेफ्टी सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई इफेक्टिव ऐसी पॉलिसीज नहीं थी जिसमें पेंडेमिक को एड्रेस किया जा सके. सो दैट वाज द टाइम जब हमें पॉलिसीज, बहुत सारे लोगों ने उस वक्त पॉलिसीज को चेंज किया था. सो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है उसको एवरी ईयर रिव्यू किया जाता है, और इट शुड बी रिव्यूड एवरी ईयर. इट शुड बी चेंज्ड or implement or improved or added after 3 years. After every 3 years there should be a new policy, or the amendment should be given to the policy document. So carefully research policy language जो हमें जरूरत होती है उसको लिखने के लिए, thorough analysis of underlying management issues, and comprehensive legal documentation with clear expectations. Legal documentations HR में बहुत important है because you are dealing with the human resource. So if you are making such any policy which can affect the human resource in any form, needs to be addressed at the right time. So for that you need to know the legal proceedings of any policy what you are applying or you are implementing. So that is again हम जब पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें लीगल पॉलिसी, लीगैलिटी का होना बहुत जरूरी है. एनालाइज अबाउट ईच पोटेंशियल पॉलिसी. जब हम पॉलिसी बना रहे हैं तो हमें इसको एनालाइज कैसे करना है. हाउ हैव वी हैंडल्ड दिस इशू इन पास्ट. जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं या कोई न्यू पॉलिसी बनाने लगे, तो पहला क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए कि पहले अगर कोई ऐसा कंसर्न या इशू आया था तो उसको हमने कैसे हैंडल किया था. Does the size of our workforce justify having a policy about this issue? कि क्या इस इशू के लिए हमारे पास जितना वर्कफोर्स है वो पॉलिसी उस पर फॉल भी करती है कि नहीं, उसके लिए हमें वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई दफा ऐसे होता है कि हमारी वर्कफोर्स इतनी नहीं होती लेकिन हमको ऐसी पॉलिसी बना देते हैं
जो कि हमें लगता है कि रिक्वायर्ड है, बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज। मे बी नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज आर too much or very less for that specific policy. Are we willing to invest the time it takes to keep the policy up to date? खाली पॉलिसी को बनाना तो नहीं है, उसको अप टू डेट भी रखना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो क्या हमारी टीम या वी आर रेडी फॉर दैट, या हम विलिंग हैं टू गिव टाइम टू दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट? व्हाट डू वी होप टू अकम्प्लिश विद दिस पॉलिसी? हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस पॉलिसी के साथ, और व्हाट आर द आउटकम्स, और इसके आउटकम्स क्या होंगे? ये चीजें पहले हमें लिखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, डिस्कस करनी पड़ती हैं बिफोर वी गो इनटू मेकिंग पॉलिसीज। विल दिस पॉलिसी फोस्टर समथिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन? इसका मतलब ये कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं, क्या वो हमारे मिशन और विजन के साथ अलाइंड है? इफ इट इज अलाइंड, then we move on. If it is not, then we have to think क्या इस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट भी है हमें या नहीं है। ड्राफ्टिंग द पॉलिसी। अच्छा, पॉलिसी को ड्राफ्ट कैसे करना है? पॉलिसी नेम, effective date of the policy and date of any revision, approval status, references, purpose of the policy, main policy statement, definition of any key concepts or terms used in the policy, eligibility of or scope, positions in the organization responsible for implementing and monitoring the policy, procedures for carrying out the policy. ये जब आप ड्राफ्ट करें, इस चीज को प्लीज आप गौर से पढ़ें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो यही है कि वी हैव टू ड्राफ्ट अ पॉलिसी। वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू डिवाइड यू पीपल इनटू 2 ब्रेकआउट रूम्स जहां पे हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएंगे अभी। तो इस वाले स्लाइड को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लें इसके ऊपर, बिकॉज जब आप पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे तो आपको इन चीजों की जरूरत होगी। पॉलिसी का नेम क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ द पॉलिसी एंड डेट ऑफ एनी रिवीजन, ये सब चीजें आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। You can take a picture and then you can share with each other. Or Mansoor sir, if you can take a picture and share in the group as well. Yes, just a minute. Before we move to HR department, let's start with developing a policy. क्योंकि अभी जितना हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि हम पॉलिसी बनाते क्यों हैं। I'll just give you a purpose क्या है पॉलिसी का, क्या चीजें कंसिडर करनी है बिफोर मेकिंग द पॉलिसी, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे इफेक्टिव बनाना है, एंड एनालाइज अबाउट पोटेंशियल पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बना रहे हैं उसकी जरूरत भी है या नहीं है, एंड देन नेक्स्ट इज द ड्राफ्टिंग द पॉलिसी. Now the activity which you are going to do is, for which you are going to get about 15 minutes in breakout rooms, in which you are going to discuss the name of the policy. कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, उसकी इफेक्टिव डेट बतानी है आपने कि कब से कब तक, और उसकी सबसे पहले तो आपने उसका पर्पस बताना है कि पर्पस क्या है, उसको अप्रूव कौन करेगा, इसका फायदा एम्प्लॉयज को क्या होगा और एम्प्लॉयर को क्या होगा। सो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने स्लाइड पे रख दिए। एंड वी विल स्टार्ट एट 7:05 एंड वी आर गोइंग टू जॉइन बैक एट 7:20. अभी हम ब्रेकआउट रूम्स में चले जाएंगे, मंसूर साहब हमें डिवाइड कर देंगे इन 2 ब्रेकआउट रूम्स, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्लाइड एंड एनी पॉलिसी यू कैन मेक. I would suggest that make that policy जो आपको लगता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको और आपको लगता है अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी है जो है और आपको ठीक नहीं लगती. सो कोई भी पॉलिसी आप एज अ ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं. कैन बी कंपनसेशन की पॉलिसी, बेनिफिट्स की पॉलिसी, लीव की पॉलिसी, लीव मैनेजमेंट की पॉलिसी, compliance की, code of conduct की, anything you think that is important. You have to think on that, and then you have to discuss about all these areas. And by when we are going to join back, then one of you from the group is going to discuss about your findings about drafting the policy. That how did you make the policy, and what were the areas where did you what were the areas where there was a difficulty, and what did you learn after doing this activity. So Mansoor sir, can you please divide us into 2 groups?
या मैं आपको सब लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आप सब लोग अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपस में डिस्कस कीजिएगा। ऑटोमेटिकली जो जूम है आपको डिवाइड कर देगा लोगों में, ठीक है। तो आपने डिस्कस करना है, फिर हम वापस आ जाएंगे अराउंड 7:20 में, फिर वहाँ पे उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे किस ग्रुप में डाल रहे हैं? आपको हमने डाल दिया सारे ग्रुप में। यस, ठीक है। अच्छा जी मैम शुमाइला, आपको मैं एक ग्रुप में सेंड करता हूँ, आपको ग्रुप असाइन करता हूँ, ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप में भी मैंने शेयर किया है कि पॉलिसीज कैसे डेवलप करते हैं, और पॉलिसी आपने डेवलप करनी है किस तरह से। रूम 2 में मैंने आपको असाइन कर दिया है, जहाँ पे लोग, ठीक हो गया। जी, इस टाइम पे हमने 2 ब्रेकआउट रूम डेवलप किए हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट उन्होंने ज्वाइन कर लिए, अपने अपने ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा मोड ऑफ डिस्कशन ये है CHRP के अंदर कि डिस्कशन बेस्ड हमारी ट्रेनिंग होती है। डिस्कशन बेस्ड ट्रेनिंग में हम ये फैसिलिटी अवेल करते हैं, लोगों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं, जिसमें वो जाके अपने अपने ग्रुप्स में जाके लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कशन करने के बाद फिर कोई एक उनमें से जिसको वो ग्रुप नॉमिनेट करता है, वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए बाकी लोगों के साथ अपना जो टेक आउट है वो डिस्कस करते हैं। जो उनका टेक है उस ग्रुप डिस्कशन के बाद वो लोगों से डिस्कस करते हैं, ताकि सब लोगों की लर्निंग में इजाफा हो। ये एक तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है जो बहुत हेल्पफुल होती है हम सब लोगों के लिए, सारे प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि वो हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें। इस वक्त 7:08 हो चुके हैं। 7:20 तक हम सब लोगों ने ब्रेकआउट रूम में रहना है, और उसके अंदर हमने डिस्कशन करना है HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को, कि HR पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की क्या वैल्यू है, उनको कैसे डेवलप किया जाता है। HR के अंदर जब भी आप लोग काम कर रहे होते हैं, जब भी HR के अंदर होते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप टू बॉटम हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई आपको पॉलिसी डेवलपमेंट का काम करना पड़ता है, राइट। तो सब लोग अपने अपने ब्रेकआउट रूम में, हम इनको ब्रेकआउट से वापस लेके आएंगे 7:20 पे, फिर हम सब लोग डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। जो पार्टिसिपेंट है वो हमें सुन नहीं सकते इस वक्त में।
और हम उनके लिए ऑडिबल नहीं है, वो लोग आपस में इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच।
जी, हम एक ब्रेकआउट रूम से वापस आए हैं, वहाँ पे से जो लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में पॉलिसीज के ऊपर। तो वहाँ जाके बड़ी अच्छी इंटरेक्शन आपस में लोग कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं जो कि पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और डिस्कस भी कर रहे हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिल रहा है। नो, मैं अब गोइंग टू द अदर रूम, दूसरे रूम में जाके देखता हूँ एज अ मॉडरेटर के वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग किस तरह की लेवल ऑफ डिस्कशन चल रहा है। तो फिर उससे वापस आऊंगा, 7:20 पे हम रिज्वाइन कर लेंगे, राइट। जी, मैं मेन चैट रूम में वापस आ चुका हूँ। रूम नंबर 2 में भी मैंने विजिट किया, रूम नंबर 1 में भी विजिट किया। दोनों जगहों पे बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है, लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अराउंड 2-3 मिनट्स वो वापस आ जाएंगे लोग, तो फिर हम दोबारा जाएंगे इसके ऊपर, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। अ, अब मैं सब दोनों रूम से बाहर हूँ। जूम के ऊपर जो दोनों ब्रेकआउट रूम्स हैं उनसे मैं बाहर हूँ, जो जिनमें लोगों को पार्टिसिपेंट को बाइफरकेट किया हुआ है हमने। तो जब 7:20 मेरी इस क्लॉक पे हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 7:20 पे मैं ब्रेकआउट रूम को क्लोज कर दूंगा और फिर सब लोगों को मेन में ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे वो डिस्कस करें। सबके पास इंडिकेशन आ जाएगी कि विद इन 15-20 सेकेंड या 10-15 सेकेंड सब लोगों के ब्रेकआउट रूम क्लोज हो जाएंगे। तो वो फिर उनको एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि वो वाइंड अप कर लें अपनी अपनी डिस्कशन को। तो डिस्कशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड टॉपिक इज रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग डिस्कशन। डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस लोगों से मिल रहा है, डाइवर्सिफाइड किस्म की जो इंटरेक्शन है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से लोगों की वो एक दूसरे के साथ लोग शेयर कर रहे हैं। रियली अ काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर ब्रेकआउट रूम के अंदर जाके। तो होपफुली ये उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा ही कंटेंट लेके आएंगे और कोई जो टेकआउट होगा उनका सबका वो प्रोडक्टिव होगा और हम सबके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिंग होगा। हम सब उससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे और हमारे काम भी आएगा वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे लोगों से सुनेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और यकीनन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने जो ऑपरेशनल लेवल पे जाके एचआर को हमने डील करना होता है, वहां हम इसको यूज करेंगे। क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो प्रोसेस बेस्ड नहीं है, ऑपरेशन बेस्ड है। तो थ्योरी से ज्यादा ऑपरेशनल लेवल पे हम बात करेंगे। ओके जी, थैंक यू। 7:19 हो चुके हैं, जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग। उसके बाद ब्रेकआउट रूम जो है वो क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने के बाद सब लोग वापस आ जाएंगे मेन विंडो के अंदर, जहाँ पे आप लोगों के लिए भी वो सब लोग विजिबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस राइट नाउ। दिस इज CHRP, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल प्रोग्राम। 10 वीक का प्रोग्राम है, जिसमें हम बहुत सी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो है, जिनका प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के साथ एक्सपीरियंस है, ट्रबल शूटिंग का एक्सपीरियंस है, वो लोग इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, राइट। ब्रेकआउट रूम को क्लोज होने में 3 सेकंड रह चुके हैं। 3 सेकंड के बाद सब लोग आ जाएंगे। ओपन ऑल रूम, returning to main session. लोग अपने अपने ब्रेकआउट रूम से बाहर आ जाएं, मेन विंडो पे आ जाएं, ताकि हम फिर आपस में दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करें। या Everybody is back. ऑलमोस्ट सब लोग वापस आ रहे हैं। कोई रूम 1 में अभी 3 लोग हैं जो कि अभी हैं, वो निकल के आ रहे हैं, और रूम 2 में अभी 3 लोग रह गए हैं जो जिन्होंने बाहर आना है ना रूम से, और उनके पास 10 सेकेंड्स हैं बाहर आने के लिए। जी ऑलमोस्ट सब लोग वापस आ चुके हैं। Okay. So anyone who wants to share the findings, room 2 में से कोई शेयर करना चाहे? रूम 2 में कौन थे, वो उनमें से कोई शेयर करना चाहे, अगर जो आपकी फाइंडिंग्स हैं या आपने किस चीज पे पॉलिसी बनाई? हमारी जो डिस्कशन थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, बट हमने जितना थोड़ा बहुत हमने जो डिस्कशन किए वो बता देते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि जो भी पर्पस है, पर्पस ये है कि हमें ऐसी पॉलिसी ड्राइव करनी, लीव हमारी पॉलिसी है, लीव पॉलिसी। ठीक है। और हमारा सेक्टर रिटेल सेक्टर है, और मैंने अपनी कंपनी पे सजेशन दिया था, इस पे हमने डिस्कशन की थी। और हमने लीव्स हमारे यहाँ पे जो होती है वो 10 कैजुअल, 8 सिक एंड
14 एनुअल होती है एज पर लॉ जो होती है, हम उसी को इस पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इसके अलावा हमारी अप्रूवल जो स्टेटस है वो LM1 एंड LM2 है कि लाइन मैनेजर 1 पहले उसको अप्रूव करेगा, देन लाइन मैनेजर 2 करेगा, तब जाके वो अप्रूव कहलाएगी। अगर दोनों अप्रूव नहीं करते तो वो डिडक्शन की तरफ जाएगा। इसके अलावा हम जो पर्पस है वो ये कि कोई भी लीव की वायलेशन ना हो, ऐसा ना हो कि उनको हमने अगर ज़्यादा लीव्स दे दिए हैं तो वो एक साथ ही अवेल कर ले। हमने इसके लिए डिवीजन किया हुआ है कि एक मंथ में आप एक से 2 से ज़्यादा कैजुअल नहीं वो अवेल कर सकते, क्योंकि फिर एक ये स्पेशल अप्रूवल का एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैनेजमेंट के अप्रूवल पे अप्रूव हो जाती है, तो उस वहाँ तक नहीं पहुँचने के लिए हमने इनको लीव्स इतनी ही अवेल करने की के लिए अलाउ किया। ठीक है। हमारी फाइंडिंग में एक ये भी था कि हमने देखा कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स थे, मतलब हमारी डिफरेंट टाइप कंपनी थी, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी, एजुकेशन सेक्टर, स्टोर, तो हर टाइप में हमने ये देखा है कि डिफरेंट लीव्स हैं। किसी को लीव इनकैशमेंट नहीं मिल रहा है, इनकैश लीव्स नहीं मिल रही हैं, किसी की खत्म कर दी गई हैं, और किसी की अनलिमिटेड लीव्स हैं जो मिल रही हैं। जैसे यासिर वहाँ आपने के पास ने जो बताया कि बहुत सारी एडवांटेजेस थी, उनको काफ़ी लीव्स मिल रही हैं डिफरेंट टाइप्स की। और अब राहत बानो ने बताया कि इनकी इन कैश जो एनुअल लीव्स थी वो बंद कर दी गई हैं। उसकी वजह से उनको एक डिसएडवांटेज ये हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रहे हैं। कि उनको पता है कि इन दी एंड ऑफ द ईयर उनको छुट्टियां तो मिलनी नहीं है, तो वो सारी छुट्टियां अवेल करने की कोशिश करते हैं, ये कि वो बचाएं कि उनको इन कैश हो सकें। तो ये डिसएडवांटेज भी देखने को मिला राहत बानों की वजह से, कि ऐसे भी सेक्टर्स होते हैं जिनका इन कैश ना होने की वजह से उनको ये भी ड्रॉबैक मिल रहा है। ठीक है। सो आपने जब लीव पॉलिसी के ऊपर काम किया तो आपको नजर आया कि देयर आर डिफरेंट वेज। आप लोगों ने अभी जो डिस्कशन, क्योंकि 20 मिनट्स इज क्वाइट लेस फॉर दिस डिस्कशन, एक्सक्यूज मी, तो जो आपने डिस्कशन की उसमें आपको ये समझ आया कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सो यहीं से हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूरा होता है पर्पस। अब हर कंपनी, हर इंडस्ट्री का पर्पस फर्क है फॉर लीव पॉलिसी। राहत बानो में एजुकेशन सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर में लीव की पॉलिसी फर्क होगी, जो रिटेल में उसकी लीव की पॉलिसी फर्क होगी, जो मेडिकल में उसकी लीव की पॉलिसी फर्क होगी। अब मेडिकल में अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी होती है, उनकी लीव की पॉलिसी कभी भी रिटेल वाले के साथ मैच नहीं हो सकती। सो पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी वाज कि जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें समझ आता है कि डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, और जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वन पॉलिसी कैन नॉट सूट एवरीवन। So that is where the importance comes, that every organization, every industry has its own way of running that organization or production or business development. So उनकी policies भी एक दूसरे से फर्क होगी। So is this helpful for you to understand that the purpose is very important for the policy? You can raise your hands through if you agree with this. यस। सो हमारे पास जो रूम 1 में कोई इनमें कोई है, अगर वो तो हमारे साथ अगर डिस्कस करना चाहे, रूम 1 में से उन्होंने किस पॉलिसी पे काम किया? मैम हमने अटेंडेंस मैनेजमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है। जो कि अभी रिसेंट हमारी एक प्रैक्टिस भी हुई इम्तियाज में इन द रीडिंग साइड, कि हमने ये देखा कि हमारे बहुत से ऐसे, एक तो हमारा वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, और फिर हमें ये भी देखना है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ऑन फ्लोर, मतलब उनका जो है रनिंग फ्लोर कब होता है। अटेंडेंस मैनेजमेंट के अंदर हमने ये किया कि जितने भी हमारे स्टाफ मौजूद हैं जो सेल्स में ऑन ग्राउंड होते हैं, वो एज पर देयर शिफ्ट अपने अपनी पोजीशंस पे मौजूद हों। इससे पहले ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी शख्स अपने टाइम पर ठीक तरीके से नहीं पहुंचता, मतलब एक ही फ्लोर के अंदर का 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनमें से 2 मौजूद है, 2 अपने टाइम के बाद आते हैं और उनके रोस्टर्स की मूवमेंट उनके टाइम के एडजस्टमेंट के लिहाज से हो जाती।
तो हमने ये किया कि सबके रोस्टर्स को फिक्स कर दिया मंथ बेसिस कि प्रीसेट रोस्टर्स अनाउंस किए जाएंगे फॉर होल डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रोस्टर्स, कि वो जितने भी लोग उनके पास काम कर रहे हैं वो उन रोस्टर्स के ऊपर ऑन टाइम फ्लोर पे मौजूद हों। और अगर कोई एम्प्लॉय अपने रोस्टर्स के मुताबिक 10 मिनट से ज्यादा लेट होता है तो सिस्टम में मतलब जो हमारी पॉलिसी जो हम बना रहे हैं वो सिस्टम से ऐसे सिंक हो कि कोई 10 मिनट के बाद अपने फ्लोर पे साइन इन करता है तो सिस्टम उसके लेट काउंट्स को काउंट करता रहे फॉर होल मंथ। एंड व्हेन हम पेरोल के ऊपर वर्क करें और जैसे ही हम मंथ एंड प्रोसेस करें तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके उस लेट काउंट के ऊपर उसकी डिडक्शन सिस्टम में पार्क कर दे। ठीक है, आए कि वो उसके अर्न लीव से हो और उसके पेड डेज से हो। ठीक है। सो व्हेन यू वर इन द ग्रुप, आपके पास सब रिटेल से थे, आईटी से, डिफरेंट लोग, डिफरेंट इंडस्ट्री से एक्चुअली मेरे ग्रुप में एक मैं था और सेम सैयद नूरुल तला जो खुद इम्तियाज में मौजूद हैं, ठीक है, और एक अल्ताफ अहमद थे और फैसल कुरैशी भी थे। तो फैसल कुरैशी उस वक्त शायद अभी वो रास्ते में ही है, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं वो हमें कर पाए इस तरह, बट डिस्कशन नहीं अल्ताफ किया। अहमद थे, उन्होंने डिस्कस किया बट टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था तो हम उस डिस्कशन मोड में ही रहे और उनसे मैंने फीडबैक लिया। मकसद यही था कि हम अब डिस्कशन में ही रहें, बिकॉज डिस्कशन इज दैट आप यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब आपका थॉट प्रोसेस ये था कि आपने अटेंडेंस पे काम किया, और जब आपने अटेंडेंस की पॉलिसी पे काम करना शुरू किया तो एज अ एम्प्लॉय आपको बहुत सारी क्रिब्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि अच्छा ये क्यों किया, वो क्यों किया, बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दी पॉलिसी योरसेल्फ तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होता है, उसका अंदाजा होता है। और अटेंडेंस पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में डिफरेंट होगी। आपकी इंडस्ट्री में जैसे रिटेल में है या इम्तियाज में, आपको अटेंडेंस आप बिकॉज आपकी अटेंडेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, यू फिजिकली यू शुड बी देयर, बिकॉज आपकी रिप्लेसमेंट एक बंदा ही कर सकेगा, कोई मशीन नहीं कर सकेगी। इन सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट कोई मशीन भी कर सकती है, तो सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पे अटेंडेंस पॉलिसी कैन बी differently handled. So मकसद हमारी इस एक्टिविटी का ये था that you should understand that there are different industries and one policy cannot fit to all. So one attendance policy cannot fit to all. Like if I talk about attendance policy in education sector, especially in schools, so आपकी attendance policy is very strict and very firm because the school starts at 8 o'clock. So everybody has to be there. So when you talk about some IT industry or some corporate sector where you can be late for 10 minutes, 15 minutes, it's just you who's late. It will not affect others. So there are different ways of catering those policies. Now let's go to our next part of the presentation. Now next is that function of HR. What do you think the function of HR? Functions of HR department: workforce management, recruitment and selection, training and development, compensation and benefits, performance management, labor relations, and personal administration. Just a minute, there's a question in chat, I guess. Wahab Sab is asking, ma'am, is it necessary for making a policy to have a law? That is, in case of leave policy for government sector, there is a code which define it. What in case of private sector? In private sector, every organization have their own way of making leave policy. हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं. सम इंडस्ट्रीज कैन गिव यू लीव, ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पे आपकी जो पेड लीव है या जो आपकी एनुअल लीव है वो बाय फोर्स दी जाती है, सो दैट यू शुड गो एंड यू शुड रिलैक्स एंड देन यू कम बैक. बट इन फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे एक फिजिकल प्रेजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, वहाँ पे लीव पॉलिसी इज डिफरेंट, वहाँ पे कोटा होता है
और उस कोटे से ऊपर अगर आप जाते हैं तो उसके डिफरेंट रिपरकशंस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट है। उनकी भी एक लॉ के हिसाब से उनको एक एनुअल लीव ऑथराइज होती है पर ईयर, वो ही ले सकते हैं, और उसके ऊपर मेडिकल लीव है एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, जो प्राइवेट सेक्टर में भी वही चीज फॉल करी है and government sector maybe. Private sector is more firm to these policies because they have to raise G Faisal, do you have a question? जी मैम, एक्चुअली मैं अब घर पहुंच गया हूँ तो आई कैन आस्क क्वेश्चंस। Sure. जी, द थिंग मेरा सवाल ये आपसे कि व्हाट हैपेंस इफ अगर एक इदारा जो है वो एक लॉ ने कुछ डिफाइन की हुई होती हैं चीजें, वो जब वो फॉलो नहीं करता तो एम्प्लॉय को क्या इख्तियारात होते हैं कि वो उसमें मैं अपनी आपको बात मनवा ठीक सके? है। अब जैसे कुछ लॉज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ पॉलिसीज हैं, आप एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट में वो पॉलिसी मेंशन्ड है और आपने उस पर साइन किया हुआ है एंड दैट कंपनी इज प्रोवाइडिंग दैट पॉलिसी, और उसमें उसने कोई ऐसी चीज आपसे साइन नहीं कराई जिसमें यह है कि अगर वो नहीं अबाइड करेंगे तो आप उन पे कोई केस नहीं कर सकते, then you have the right to go to the law department or to go for your right. But अगर आपने at the time of your contract or your job आपने ये साइन कर दिया है that the company has the right to कोई भी पॉलिसी को वो चेंज कर सके या अमेंड कर सके, then there would be less chances that you'll be able to go to the court or you get your right easily. But still you can go for your right when if it is a right, it is a right given by the state, like from government of Pakistan आपको कोई right available है, तो no company or no organization can stop you from exercising that right. अच्छा, द थिंग इज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई नो समवन हु वर्क्स फॉर अ स्कूल, शी इज अ टीचर, एंड उनके स्कूल की पॉलिसी ये है कि टीचर जो है वो छुट्टियां नहीं कर सकती है, और अगर वो करती है तो उनकी पे डिडक्ट होती है। सो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन हाँ, उन्होंने वैसे शुरू में कुछ चीज साइन भी नहीं की थी, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इदारा इस तरह मिसयूज कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है एम्प्लॉयज को? इसमें ऐसे होता है कि जैसे अगर स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में आपको फिक्स्ड छुट्टियां लाइक 3 कैजुअल और 3 आपको सिक लीव्स मिल सकती हैं ना सेशन, और कुछ स्कूल्स में 5 हैं या 6 हैं, बिकॉज यू कैन नॉट हैव मोर देन दैट। उससे ऊपर आप लेंगे तो आपकी सैलरी डिडक्ट होगी। फिर आपका प्रोबेशन टाइम होता है, अगर आप ड्यूरिंग प्रोबेशन आप छुट्टी लेते हैं तो भी आपकी सैलरी डिडक्ट होती है। सो दे आर डिफरेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जो भी किसी भी इदारे में, अगर तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गए उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया हो, अदरवाइज अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं भी किया तो उनको कोई हैंडबुक, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर मिला होगा जिसमें सब चीजें मेंशन होंगी, और अगर नहीं है then they can ask the organization to provide that document to them. Okay, thank you. Okay, so now सबसे पहले एचआर का क्या काम है? हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हम जनरली समझते हैं कि एचआर का काम हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ही है। दिस इज वन पार्ट ऑफ एचआर। की एस्पेक्ट्स ऑफ हायरिंग पॉलिसी। हायरिंग पॉलिसी में क्या होना चाहिए? रिक्रूटिंग सोर्सेज, सिलेक्शन एंड हायरिंग प्रोसीजर्स। आपके प्रोसीजर्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपकी पॉलिसी में कि आपने किस तरह से हायरिंग करनी है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर दैट स्पेसिफिक पोजीशन। ऑफर लेटर आपने कब देना है और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। रेफरेंस चेकिंग, हाउ मेनी रेफरेंसेस यू नीड। लाइक किसी पोजीशन के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी पोजीशन है जो सीनियर पोजीशन है, मे बी आपको 2 से 3 रेफरेंसेस चाहिए हो, तो वो रेफरेंस की क्या पॉलिसी है कि वो रेफरेंस आपको किसका चाहिए। देन बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन आपने किससे करानी है, आपकी पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। रिजेक्टिंग एन एप्लीकेंट, कोई एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है बट डजंट फॉल इन द क्राइटेरिया विच यू आर लुकिंग फॉर, आपने उसको रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करने की क्या पॉलिसी, आप उसे कैसे रिजेक्शन देंगे? कोई रिजेक्शन लेटर जाएगा, कोई रिजेक्शन ईमेल जाएगी, या सिर्फ खामोशी इख्तियार करेंगे? तो इसके ऊपर भी देयर शुड बी प्रॉपर पॉलिसी जो राइटिंग में होनी चाहिए। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन हायरिंग, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की क्या पॉलिसी है आपके पास कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें
आप ऑल जेंडर्स को आप क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं, या सिर्फ मेल जेंडर को दे रहे हैं, या फीमेल को, या अदर्स को दे रहे हैं? सो व्हाट इज द पॉलिसी फॉर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? फिर फिजिकल एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, जो भी पोजीशन आप अनाउंस कर रहे हैं उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट है या कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, और फिजिकली उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई स्पेशल है या डिसेबल है, इज दैट पर्सन इज एबल टू टेक दैट रोल? सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियर इन योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट. मेडिकल इंक्वायरीज एंड एग्जामिनेशंस, कि अगर आपने किसी को हायर करना है, मेडिकली फिट है फॉर दैट पोजीशन, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी पोजीशन जो सीनियर पोजीशन है, कैन बी ए स्ट्रेसफुल पोजीशन, सो इज दैट पर्सन इज रेडी फॉर टेकिंग दैट पोजीशन? कोई मेडिकल इश्यू कंसर्न तो नहीं है जिसकी वजह से वो पोजीशन को सस्टेन ना कर सके या फिर परफॉर्म ना कर सके? एनी क्वेश्चन ऑन दिस की एस्पेक्ट्स ऑफ हायरिंग पॉलिसी पे? किसी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई ऑब्जर्वेशन है, यू कैन डिस्कस. नहीं है? नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपका? इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन और स्कोप होना चाहिए. पर्पस एंड रीच ऑफ पॉलिसी, कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यू, विजन, ईथोस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा. कल्चरल क्या होना चाहिए? लीगल क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है. पीपल, वेयर पीपल स्टैंड इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज, इनपुट, केयर एक्सेट्रा. Methods, career development, succession, systems, tools, training manuals, knowledge and information management, process and operations, how training and development relates to operations. क्या फायदा होता है training and development का operations में? Financials, plannings, budget, prioritizing, कि कितना finances आप लगा सकती है company for training and development. Responsibility and authority, how T&D is managed, enabling voluntary and extra T&D. Social responsibility, CSR, ethics, environment, sustainability, diversity, review and measurement, accreditation, qualification, and independent audits. These are the structures on which training and development policy structure works. So next activity which we are going to do is that how important it is to have a training and development policy structures, कि हमारे पास कोई policy होनी चाहिए training and development की. So how you are going to make a policy for training and development? Now you have to make a policy document for T&D of any organization. जैसे हम पहले breakout room में गए थे, ऐसे हम breakout room में जाएंगे. You will do it quickly. आप लोग सिर्फ इसमें मुझे ये बताएंगे कि purpose क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, एंड हाउ टू मैनेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. मैनेजमेंट में आपकी क्या चीजें आएंगी? प्रोसेस आएगा, फाइनेंशियल्स आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, रिव्यू आएगी. जितनी चीजें ये लिखी हुई हैं इन सब चीजों को आप इन 3 एरियाज में डिवाइड करेंगे. पर्पस क्या है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हैव दैट, एंड देन आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, एंड हाउ टू मैनेज दैट. So there are 3 things: purpose and management and effectiveness, जिसको आप बीच में लाएंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे. ठीक है? सो मैं एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इस स्लाइड को बिफोर वी ब्रेक इनटू रूम्स. इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ स्कोप, कि आपकी ट्रेनिंग का स्कोप क्या है, व्हाई डू यू वांट टू हैव दिस ट्रेनिंग. कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल, कि इसकी आप क्या वैल्यू एंड विजन है, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आप ये डॉक्यूमेंट पॉलिसी बनाना चाहते हैं. फिर लीगली इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या इम्प्लीकेशंस है टू हैव दैट ट्रेनिंग एंड उस स्पेसिफिक एरिया की जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बनाना चाहते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. people, are the people ready to have training on that specific area which you want to be developed? कौन सा मेथड यूज करेंगे करियर डेवलपमेंट सक्सेशन में, आप किस मेथड से आप उस पॉलिसी स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे. फिर सिस्टम्स एंड टूल्स क्या आप यूज करें, ट्रेनिंग मैनुअल्स आप बनाएंगे, नॉलेज प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूज करेंगे,
डिजिटलाइजेशन यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कौन से टूल्स आप यूज करेंगे, प्रोसेस एंड ऑपरेशन के हाउ टीएनडी रिलेट्स टू, फायदा क्या है आपको, ऑपरेशंस में क्या फायदा होगा, दैट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जो भी एरिया आप सिलेक्ट करते हैं फॉर ट्रेनिंग का, उसका फायदा कैसे होगा ऑपरेशंस में, फिर फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करेंगे, आर यू गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द एम्प्लॉय और द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू पे और यू आर गोइंग टू गेट सम स्पॉन्सर, सो इसके ऊपर आप डिस्कस करेंगे। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कि हाउ इट इज मैनेज, एनेबलिंग वॉलंटरी एंड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, वॉलंटरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है या एक्स्ट्रा हो रही है। वॉलंटरी का मतलब है कि कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकता है, या ये स्पेसिफिक है, लाइक आपकी प्रोग्रेशन इसके साथ अलाइंड है या उसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपकी ये जो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बना रहे हैं, इस एरिया की डेवलपमेंट करा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी ला रहे हैं, इसकी वजह से डाइवर्सिटी आ रही है, क्या चीज करेगी ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी पूरी करेगी ये जो भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर इसको रिव्यू एंड मेजरमेंट के रिव्यू आप करेंगे कि एक्रीडिएटेड है, कौन सी क्या क्वालिफिकेशन हो जाएगी इस ट्रेनिंग करने के बाद। फिर इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हैं, ऑडिट्स में आती है नहीं आती है, जो भी क्वालिफिकेशन जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो किस क्वालिफिकेशन के रेलिवेंट है। सो यू विल हैव टू हैव एन एरिया कि किस एरिया पे आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैनेजमेंट पे चाहिए, आपको टेक्निकल चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट पे चाहिए, आपको असर्टिवनेस पे चाहिए, एंगर मैनेजमेंट पे चाहिए, किस चीज की ट्रेनिंग आपको चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप चाहते हैं किस एरिया की। सो दिस इज फर्स्ट यू आर गोइंग टू डिसाइड and then you are going to use these parameters on which we have. So I would request Mansoor Saab to please break us again on breakout rooms so that if you people can take the screenshot of this picture ताकि हम इसके ऊपर फिर स्टार्ट करें। जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया इसका, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं तो वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया इस स्लाइड का। तो मैं आप लोगों को बाइफरकेट कर रहा हूँ 2 ग्रुप्स के अंदर ब्रेकआउट रूम में, और आफ्टर 10 मिनट्स हम फिर रिज्यूम करेंगे, राइट? 15 मिनट में, तो साहब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स आप प्रोडक्टिव डिस्कशन कीजिएगा और सब लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। हाँ प्लीज डिस्कस जरूर करें, बिकॉज अदरवाइज फायदा नहीं है ब्रेकआउट रूम्स का। जी इस वक्त हमारा जो डिस्कशन चल रही है वो पॉलिसी डेवलपमेंट एंड प्रोसीजर के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी को डेवलप करने के हवाले से जो चल रहा है डिस्कशन। हमने लोगों को फिर 2 ब्रेकआउट रूम में बाइफरकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें जाके लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो 15 मिनट्स का टाइम दिया क्योंकि बड़ा थॉट प्रोवोकेटिव किस्म का काम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिसी को बनाना, डिजाइन करना। तो जस्ट आफ्टर 15 मिनट फिर हम वापस फिर रिज्यूम करेंगे और फिर हम दोबारा इसको लेके चलेंगे अपने सेशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस राइट नाउ।
ऐसे सब लोग वापस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट आ भी चुके हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझसे कोई एक मुझसे हम दोनों रूम में से किसी एक रूम में से जो भी अपनी फाइंडिंग डिस्कस करना चाहता है क्विकली कर ले, सो दैट वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यस श्योर। अच्छा, हमने जो डिस्कशन किया था वो कस्टमर सर्विस को ध्यान पे रखते हुए किया है कि हमारी कस्टमर सर्विस की टीम है, हम उनको ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करना चाहेंगे तो हमारा मेन जो पर्पस है वो ये है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे जो अगर एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव काम करेंगे तो इट विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली सेल्स बूस्ट होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एम्प्लॉयज का वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट कर पाएंगे कस्टमर के लिए। और इसके अलावा एम्प्लॉय खुद भी वैल्यूड फील करेगा कि हाँ उसको ट्रेनिंग मिल रही है और मैं अच्छा काम कर पा रहा हूँ। अब इसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज करने के लिए हमारे पास क्योंकि हमने पोजीशन ऐसी ली है कि वो उसमें टेक्निकल भी ट्रेनिंग की जा सकती है और सॉफ्ट स्किल पे भी की जा सकती है। तो हम इसको या तो इस तरीके से मैनेज करेंगे कि टेक्निकल की ट्रेनिंग अलग करवा देंगे या सॉफ्ट की अलग करवा देंगे, या फिर हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ जो है या AM एंड अबव लेवल के जो लोग हैं उनको हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवा देंगे कि आपको किस तरीके से टीम को मैनेज करना है, और आपके जो एजेंट लेवल के स्टाफ है उनको आप प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ट्रेनिंग करवा देंगे, जो टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स में डिस्कशन हो नहीं पाई। अच्छा ठीक है। जब हम जो ट्रेनिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब भी आप ट्रेनिंग को करें तो उसमें अपने फाइनेंशियल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। ओके नाउ okay, next we are going to talk about compensation and benefits. So compensation and benefits की क्या benefit की क्या policy होनी चाहिए? Employee benefit in kinds are various. Non-wage compensations provided to employees in addition to the normal wages of salaries. Some of these benefits are HRA, LTA, medical reimbursement, insurance, conveyance, retirement benefits, profit sharing. The compensation policy should state the proportion of fixed and variable components. The policy should be formulated considering the tax implications. So when you talk about compensation and benefits, इसमें हमारी detailed discussion भी आगे होगी, हमारे पूरा एक topic है compensation and benefits पे. Then we are going to discuss about detail में कि क्या है compensation and benefits and कैसे provide किए जाते हैं. But for your understanding, everybody knows that compensation and benefits are those जो आपकी salary से हटकर होते हैं. तो जब salary से हटकर आप कोई चीज दे रहे हैं तो उसकी policies and then उसके procedures को clear होना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी को medical reimbursement दे रहे हैं, medical insurance दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, और सिर्फ उनको मिल रहा है या उनकी फैमिली को भी मिल रहा है. So these things should be considered as part of the policy document. और सेम इज अगर प्रॉफिट शेयरिंग पे है या रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट्स है तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रेजल क्या है, इनफॉर्मल डिस्कशन है, फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स कौन से हैं, सुपरवाइजर ट्रेनिंग है, फैक्टर्स टू बी अप्रेज्ड कि कौन सी चीजों के ऊपर आपको अप्रेजल दिया जाएगा, सुपरवाइजर्स रिकमेंडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कि सुपरवाइजर की रिकमेंडेशन की कितनी वेटेज होगी ड्यूरिंग एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर एक्शन प्लान क्या होगा, अप्रेजल होगा, फिर एक्शन प्लान क्या होगा कि कितना इंक्रीमेंट होंगे, कितनी परसेंटेज का एक इंक्रीमेंट होगा, साल में कितनी दफा दिया जाएगा, फिर परफॉर्मेंस गोल्स क्या हैं कि जो आपके KPIs हैं क्या वो KPIs अलाइंड हैं और वो कब दिए जाएंगे, कौन देगा, मैनेजर देगा, सीनियर मैनेजमेंट देगा, किस तरह से उन गोल्स को अटेन करने के लिए क्या पॉलिसीज यूज की जाएंगी. एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी टू कमेंट, क्या एम्प्लॉय के ऊपर कोई इजाजत होगी कि वो अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर कोई कमेंट कर सके या डिस्कशंस कर सके. फिर फाइनल रिव्यू कौन करेगा, टाइमिंग ऑफ एवेल्युएशन क्या है, लाइक अगर जनवरी टू दिसंबर है तो किस टाइम पे एवेल्युएशन होगी, एक्यूरेट एंड फेयर एवेल्युएशन का क्या प्रोसीजर है, क्या आपके पास कोई अप्रेजल की टीम है या HRIS के ऊपर या HRMS के ऊपर आप कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस असेसमेंट्स हैं या एवेल्युएशंस हैं.
नेग्लिजेंट इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, डिफेमेशन है कि अगर किसी को अपनी अप्रेजल से या सेटिस्फेक्शन नहीं है या नेग्लिजेंस है जिसकी, तो उसके लिए क्या है, या जो परफॉर्मेंस को मैच नहीं करा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर, बिकॉज बहुत सारी आपकी रिटेंशन इस पॉलिसी के ऊपर रिलाई करती है। तो दिस हमारे पास नेक्स्ट, जब भी हमारे पास टाइम होगा तो हम इस पॉलिसी के ऊपर जरूर एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको डिस्कस नहीं करेंगे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि एक एक चीज को अगर आप देखेंगे तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके ऊपर एक पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। सो इन चीजों को माइंड में रखते हुए आप पॉलिसी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल का। देन ग्रीवियंस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट विच वुड बी फ्री ऑफ हॉस्टिलिटी एंड ट्राई ब्रीड इन अ वर्क कल्चर विच propagates a free and open thought process, encouraging growth and harmony, free from incurrence of force, मतलब force के बगैर जो आप काम करा सकते हैं वो ग्रीवियंस की पूरी एक पॉलिसी होती है। ग्रीवियंस मैनेजमेंट को कैसे चलना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड on some decision of the manager or some directions of the management or some introduction to any new thing, so उनकी grievance develop हो जाती है। तो उस grievance को manage करने की policy होनी चाहिए, that how to address that grievance। क्या manager उसको address करेगा, अगर उसको manager से grievance है तो HR में क्या process है, क्या procedure है जिसके थ्रू उस grievance को manage किया जाएगा, इसकी proper policy document होना जरूरी है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट इज टू क्रिएट अ सेफ, इक्वल एंड एम्बिग्विटी लेस वर्क एनवायरनमेंट। फिर it is just as essential that employee act in a professional manner and extend the highest courtesy to co-workers, visitors, customers, vendors, and clients. These are the objectives of making a code of conduct. Policy क्या होगी, various policies like dress code, use of company communication, open door policy, clear in definition and terms, the operating authority and the consequences of violation of policy. अब इसमें सबसे पहले अगर आप कोड ऑफ ड्रेस कोड है, एवरी कंपनी है शुड हैव देयर ओन पॉलिसी फॉर ड्रेस कोड। लाइक अगर आप फैक्ट्री में काम करें तो आपका ड्रेस डिफरेंट होगा, इफ यू वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर योर ड्रेस वुड बी डिफरेंट। सो कंपनी कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, विच लैंग्वेज यू वांट वुड बी प्रेफर्ड, विच लैंग्वेज इज नॉट प्रेफर्ड। लाइक अब्यूसिव लैंग्वेज तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट नहीं की जाती, बट देयर आर सम फॉर्मल लैंग्वेजेस, फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन विच इज प्रेफर्ड, सो दैट पॉलिसी शुड बी देयर। If do you have an open door policy or not? Open door policy का मतलब ये कि are you available or are your senior management is available to meet the employees? Clear in definitions and terms, and operating authority कौन है, and the consequences अगर कोई violation किए किसी ने इस policy की तो उसके consequences क्या हैं। Curbing legislation, communication with employees, communication with managers and supervisors, time savings. Before hire to retire, this is one slide which will help you understand the process of all HR. Recruitment, selection and grading. Hiring के वक्त ये हो गया, पे induction and probation. Hire हुआ, induction and probation हुई. Provide employee benefits, nurseries and childcare. Reward and recognize staff. Facilitate career progression and succession planning, ये आपका T&D आ गया। Support organizational change, develop policies, procedures and tools to support managers and staffs. क्यों हम policy and procedure की बात करते हैं, so that policy and procedure should support the manager to and staff to work on some one common or shared vision or shared goal. Consult and engage with staff and trade unions, train and develop. Provide personal administration, administer pensions, provide HR data to inform decision making, diversity, inclusivity, and well-being, coach managers on resolving employee relation issues. So these were the things जो सब कुछ मिला के आपकी basic HR होता है। हायर टू रिटायर में ये सारी चीजें आपने करनी होती है। हायरिंग की आपने
रिक्रूटमेंट की। अब ये जो है ये जो स्लाइड है, दिस इज अगेन एन एक्टिविटी जिसमें डिफरेंट चीजें हमने बता दी हैं। अब इसका एक पाथवे बनेगा, जैसे इफ वी हैव टाइम तो मैं आपको एंड में टाइम दे दूंगी, इसके ऊपर आप डिस्कस नहीं करना, आपने इंडिविजुअल एक्टिविटी है ये कि आपने इस प्रोसेस को देखना है। डिफरेंट कॉलम्स हैं तो आपने इसको एक सीक्वेंस में लेके जाना है, हायरिंग से लेके रिटायरमेंट तक। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 है। तो इनको सीक्वेंस में आपने लेकर आना है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या चीज आएगी, फिर क्या आएगी, और इसको आप एक सीक्वेंस में लेकर आएंगे सो दैट हायर टू रिटायर की आपके पास एक सीक्वेंस आ जाए। सो वी आर गोइंग टू डू इट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो पीपल स्ट्रेटजी क्या है, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, देन टैलेंट मैनेजमेंट है, फिर रिवॉर्ड्स हैं, थ्राइविंग एंड इंक्लूसिव कम्युनिटी है। So now we are going to work on this slide only. It's an individual activity. Take 5 minutes, 5 to 7 minutes to see. इसको आप नंबरिंग कर लें, आप लोग अपने पास पेपर पे लिख लें, and then you are going to let us know that which do you think is the sequence. The sequence should be 14 है, इनको आपने 1 to 14 align करना है. So you have 5 to 7 minutes to do this activity. So let's start it now. I'll just read it out again. Recruitment, selection, and grading. Then induction and probation, provide employee benefits and nurseries and child care. So आपने इसको importance देखनी, कौन सी importance किसकी ज्यादा है, कौन किधर क्या fall करता है. तो hire to retire का एक ये पूरा sequence of 1 to 14 में इसको रख ले, बना लें, और फिर हम we can share, 1 or 2 of you can share that. So any one of you who have done it or जिसको थोड़ा सा समझ आया can share with me. Ma'am, if I may just add here that they, all these boxes, they don't really add up to a well-defined pathway. For Yes. example, recruitment, selection and grading के बाद चले induction and probation आ सकता है. उसके बाद ये आ सकता है कि you provide employee benefits and nurseries and childcare. But then in the middle when it says, support organizational change, वो तो एक ongoing process Process होता है. है. जी, लेकिन and उस then ongoing process आप retirement के करीब तो नहीं लेके जाएंगे ना? okay, right, जी, that's right.
तो वो मिडिल में आ जाएगा। हाँ, मेरा मतलब कहने का ये था कि ये जिस तरह से ये लिखा हुआ है, आई थिंक ये सेल्फ एक पाथवे सा बना हुआ है, क्योंकि इट इज अ पाथवे, लेकिन इसमें अच्छा। आप देखें, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अब अगर हम इसमें आप देखें रिटायरमेंट पॉलिसी हमारे पास, पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पेंशन, तो किसने उसको किस वक्त करना है, फिर डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड वेलबींग, ये तो हमारे पास कब आनी चाहिए? हर वक्त। हर वक्त। तो रिक्रूटमेंट के बाद हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, इंडक्शन हो गई तो उसके बाद हमें डाइवर्सिटी इंक्लूजन एंड वेलबींग की तरफ जाना चाहिए। ओके। ठीक है, दिस इज जस्ट अ थॉट प्रोवोकिंग स्लाइड, जिससे आप जब जिसको हायर टू रिटायर कह रहे हैं, ताकि ये सब प्रोसीजर्स आपको पता है। ये सब चीजें हर कंपनी में हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही होंगी, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम ट्रेन एंड डेवलप को रिटायरमेंट के करीब ले जाएं, वुड दैट हेल्प? नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। सो हमने सिर्फ इस चीज को देखना होता है कि जो जो प्रोसेसेस हैं उनको टाइमली करना भी जरूरी है। कई दफा ऐसे होता है कि हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट कि हम ये कर रहे हैं, आप उसको कभी भी किसी वक्त भी कर देते हैं। तो ट्रेन एंड डेवलप, तो जब आपने हायर किया तो उसके बाद इंडक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बंदे को डाल देना पड़ता है। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन तो फौरन हायरिंग के बाद नहीं आएगा, उसमें टाइम लगेगा। So this is how this slide is going to help you to learn and to see that these are the areas on which we are working, so you can decide कि hiring के वक्त मुझे क्या चीजें focus करनी है, middle time पे जब the employee is with the organization and learning, so उसको training and development करके हमने कहाँ लेके जाना है, और retirement के वक्त किस चीज की तरफ हम उसको लेकर जाएंगे। So this is just for your thought provoking concept. Now the next is, you all must have done it, so इसको आप discuss कर सकते हैं। Now recruitment and retention is people strategy, key themes क्या हैं? सबसे पहले recruitment and retention है, देन टैलेंट मैनेजमेंट, जो भी हम सारी बातें करें टैलेंट मैनेजमेंट की, एम्प्लॉय का लाइफ साइकिल है, कहाँ से शुरू हुआ, ट्रेनिंग्स कराई दिया, तो सारा टैलेंट मैनेजमेंट में आ जाते हैं। देन रिवॉर्ड्स, क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, क्या इंसेंटिव्स हैं अलॉन्ग सैलरी, तो आपका इंसेंटिव नहीं है, सैलरी तो आपका राइट है, तो रिवॉर्ड्स क्या हैं, इंसेंटिव्स क्या आपको मिल रहे हैं, एंड देन वेलबींग क्या है, क्या कर रहे हैं आप वेलबींग के लिए, और थ्राइविंग इंक्लूसिव कम्युनिटी बनाने के लिए व्हाट आर यू डूइंग, what are you providing to your employees so that they remain happy and they remain and you can retain those employees. So this is the complete life cycle of HR, a basic one, not a detailed one, on which we have which we have discussions today. So the policy for each and every aspect is very important. So today's session was about the importance of the policies and what are the areas to be addressed or to be kept in mind while making policies for that specific areas. So now we have last 10 minutes. If any one of you have any questions, you can ask us. I am here, Sir Mansoor is here, so we can reply to your queries. So the forum is open for questions now. बेसिकली रिटेंशन के कौन कौन से मतलब तरीके होते हैं, हम किस तरीके से अपने एक एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हैं? ठीक है, रिटेंशन में सबसे पहले आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज वन पार्ट, रिवॉर्ड्स, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसके ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो यू विल रिटेन द एम्प्लॉय। एंड सबसे पहले एक्सेसिबल होना एम्प्लॉय को, आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एम्प्लॉय शुड हैव दिस करेज टू टॉक टू यू, एंड ओपन डोर पॉलिसी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ रिटेंशन। मंसूर साहब, यू कैन ऐड टू इट। बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं, अपने सारे इंपॉर्टेंट जो बताए हैं पोस्टुलेट्स एम्प्लॉय रिटेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो ठीक है कि एम्प्लॉय की एंगेजमेंट जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी रिटेंशन का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो आप एम्प्लॉय को एंगेज कैसे करते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कैसे चलते हैं एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय को क्या नजर आता है अपने उस कैरियर में, अपनी उस पोजीशन में अपने लिए, तो एम्प्लॉय को अगर नजर आ रहा है कुछ कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्रेशन, तो एम्प्लॉय हमेशा रिटेन ही रहेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय नजर नहीं आ रहा तो फिर वो रिटेन रहना मुश्किल काम है इसके लिए।
जी, if I just may add something to this कि जब से Gen Zs आए हैं वर्कफोर्स में और ये रिसर्च से भी काफी दफा ये साबित हुआ है कि the number one priority for them is mental well-being. And since I belong to the IT industry, I see this काफी जगहों पे मैंने देखता हूँ कि mental well-being का बहुत ख्याल रखा जाता है, and that is the number one factor for your retention. For example, we at our workplace, we have a special life coach who only comes for this purpose, that just to ensure कि employees हैं वो happy हैं, they have someone to talk to, they can discuss their personal issues या professional issues. तो ये एक नई चीज हमें थोड़ी सी recent times में देखने को मिली है कि employees के well-being का special ख्याल रखा जा रहा है आजकल के दौर में. मैंने बस ये ऐड करना था. Thank you so much, Faisal, for adding this, because this is really important. And Gen Z are coming into job market. अभी तो वो मेरा ख्याल है बहुत कम आए हैं. Next 2 years में they'll be in the job market. तो are we ready for that? उसमें एक question बहुत important होता है, because well-being is something which is in recent time after COVID, this thing has hit so many people in a different way, जो पहले शायद इतना नहीं किया था. So इस pandemic ने भी इसकी importance बढ़ा दी है. And you are right, there are so many companies, so many organizations also are working on the well-being of the employee, and definitely this will help in retention of the employees as well. Thank you for the addition. जी मैम, and this brings us back to our शुरू में जो आपने बात की थी ना कि policies को कितना रिवाइज करना चाहिए. तो yes, आपको वक्त बताता है कि now it's time to evolve, and now it's a requirement to revise your policy. So mental well-being, it became a thing after COVID, and ये इस पे सबने जोरों शोर से काम किया था. जी. Rasit का question है कि in government sector what will be the steps for retention, as there is fixed salary, also limitation of training. In government sector सबसे बड़ी retention तो आपकी ये है कि you'll get pension, और फिर आपकी एक permanent job है. सबसे बड़ी रिटेंशन का तो आपका इशू ये रिटेंशन की तो रिक्वायरमेंट ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को होती है. गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको पता है आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आपकी तो फिक्स्ड जॉब है. तो उधर रिटेंशन के इतने इश्यूज एंड कंसर्न्स नहीं होते जितने प्राइवेट सेक्टर में होते हैं. मैम, कैन आई आस्क समथिंग? जी मैम, गवर्नमेंट सेक्टर में फिर ये भी होता है ना कि जिस तरह एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात होगी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो आप किस तरह कर सकते हो? जब फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ये डायलेमा है कि अगर आप काम करें तो करें, अगर ना करें तो ना करें. सही कह रहे हैं. HR इंट्रोड्यूस हो गया उसमें ना, तो हर रोज मैं सोचता हूँ कि जो लोग काम नहीं करते उसको किस तरह एंगेज करूँ. उनको एक खास सैलरी मिलती है, अगर आप मतलब ये कि वो अगर आ जाए, मतलब ये कि वो रजिस्टर पे हाजिरी लगाएं या थंब लगाएं, बस उनकी वो मतलब ड्यूटी शुरू हो गई है. पूरा दिन वो ऐसे ही बैठे रहें और जाते वो फिर मतलब ये कि फिंगर लगा दें वो अटेंडेंस पे मशीन पे और चले जाएं, तो मतलब ये कि बस उनकी सैलरी काउंट हो जाती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. उनके लिए अकाउंटेबिलिटी के प्रोसीजर्स मेरे ख्याल है गवर्नमेंट में ऑलरेडी हैं, और अकाउंटेबिलिटी को ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे वो काम करेंगे. आप उनको एंगेजमेंट तो आप उनकी क्या करेंगे? उनको तो काम तो वो वैसे ही नहीं करे. एंगेजमेंट से ज्यादा उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है. और वो मैनेजर्स, जैसे अगर इफ यू आर द मैनेजर एंड यू हैव एम्प्लॉइज जो आपके साथ काम नहीं करे, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, आप उनसे पेप टॉक्स करेंगे, आप उनकी काउंसलिंग करेंगे. दीज आर द वेज यू कैन ब्रिंग देम बैक टू. और एक मॉरल पेप टॉक हो सकती है कि यू आर हियर, यू आर कमिंग, यू आर बीइंग पेड फॉर समथिंग. सो इफ यू आर नॉट वर्किंग, अगर आपको कोई देख नहीं रहा तो अल्लाह तो देख रहा है. सर बहुत सारी ऐसी पेप टॉक्स करके आप उनसे काम करा सकते हैं, बिकॉज उनकी जॉब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो काम ना भी करें. Thank you. जी, if you allow me to add, ma'am, it's just that हमारे जो work ethics है ना, as a nation, पाकिस्तानी हम लोगों के जो work ethics हैं वो बहुत weak है. Like अगर एक जापानीज गवर्नमेंट ऑफिसर होगा तो आई एम श्योर कि वो बहुत डिफरेंट परफॉर्म करेगा हमारे से, राइट? सो हमारे जो एथिक्स है ना उन पे बहुत काम करने की जरूरत है. एंड स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में देयर नीड्स टू बी सम रीइंफोर्समेंट शुरू से. एज पेरेंट्स वी नीड टू टीच दिस टू आवर किड्स, ताकि ना मतलब फ्यूचर में एक बड़ा चेंज आ सके. वैल्यू स्ट्रक्चर आपका वैल्यू सिस्टम, एग्जैक्टली, यस.
और वो हम एक दिन में नहीं ला सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप वाली बात है कि वो फिर आपको बचपन से करना पड़ता है, और फिर उसमें पेरेंट्स का, स्कूल्स का, सोसाइटी का, सबका कलेक्टिव वर्क है, किसी एक का नहीं हो सकता। ठीक है जी, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन and I hope it is fruitful for you. If you have any questions, you can ask those questions in our जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, and whenever I'll be able to reply to all your queries. Thank you so much for session. Thank you Mansoor sir for having me for this session. Thank you very much. Thank you very much. जो आज का मटेरियल है, टीचिंग मटेरियल, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड। Thank you everyone.